হেঙুলীয়া সহযোগ কৰিছে অমিত চিমেণ্টিং পাৰফৰ্মেঞ্চ। কাইলৈ স্কুল শেষ হোৱাৰ পিছত তুমি আমাৰ ঘৰলৈ আহিবা। চাওঁ হ'ব, চেষ্টা কৰিম বাৰু। একো চাব নালাগে, নহ'লে ভাবিম তুমি মোকো বেয়া পাইছা বুলি। আহিবা দেই, এতিয়া ৰাখো। ঠিক আছে হ'ব বাৰু বৰমা, ৰাখিছোঁ। ঠিক আছে। মাজনীও আন্তৰিকতাখিনি দলিয়াই নিদিবি, যাবি কালিলৈ। আগৰদা চাহ। কোৱা, কি ক'ব লগা আছে? নাই নাই, তেনেকুৱা বিশেষ একো কথা নাই, অকণমান সৰু কথা এটা আছিল। আকাশীক বহুত বেছি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল নেকি বাৰু? যিখিনি ব্যৱহাৰৰ যোগ্য মই সেইখিনিয়ে কৰিছোঁ তাইক। জোখতকৈ বেছি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল চাগে ন? সেইকাৰণে আমাৰ ঘৰলৈ নাহিলে। মই তাইক ঘৰলৈ আহিবলৈ বাধা কৰা নাই, মাথো আমাৰ ঘৰুৱা কথাবোৰত মূৰ নকমাবলৈ কৈছোঁ। বেয়া কাম কৰিলে আপুনি। আৰে তোমালোক সকলোৱে আকাশীৰ পক্ষ কিয় লৈছা? ভুল কৰিলে বহুত শিক্ষকক মই দাবী দিওঁ, গালি পাৰোঁ, কিন্তু তেতিয়াতো ঘৰৰ কোনো মানুহে মোক ভুল দেখুৱাব নাহে, কাৰোতো আপত্তি নাথাকে। আকাশীক কিবা এটা কোৱাৰ কাৰণে তোমালোকৰ ইমান আপত্তি কিহৰ? কাৰণ কম দিনৰ ভিতৰত আকাশী আমাৰ ঘৰখনক যিমান বুজি পালে, তেনেকৈ কোনো শিক্ষকে আজিলৈকে বুজি পোৱা নাই। অঁ, শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী স্কুলত বহুত আছে, কিন্তু সকলোৱে কেৱল চাকৰিহে কৰে। আমাৰ ঘৰখনৰ আৱেগ অনুভূতিবোৰ কোনেও বুজি নাপায়। ৰিয়াৰ লগত সময় কথা আকাশীয়ে ভাল পায়। ৰিয়াৰ লগত ঘটা ঘটনাবোৰৰ বাবে চকু পানী থকা শিক্ষয়িত্ৰী মাত্ৰ এগৰাকীহে আছে, আৰু তাই হ'ল আকাশী। আপুনি এইবোৰ কথা অনুভৱ কৰিব নোৱাৰে দাদা, কিন্তু আমি কৰোঁ। যি আমাৰ ঘৰখনৰ কথা ইমান ভাবে, আপুনি তেওঁকে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিলে। তাৰমানে মই এতিয়া কি কৰিব লাগে? আকাশী ভৰি দুখনত ধৰি ক্ষমা খুজিব লাগে নেকি? নালাগে, কিন্তু মানৱতাৰ খাতিৰত আপোনাক বেয়া নাপাব বুলিতো ক'ব পাৰে। ফুলতে বেছি টানকৈ কথা কোৱা বুলিতো ক'ব পাৰে। আমাৰ কথা চিন্তা কৰা মানুহৰ মনত দুখ দিব নাপায়। আজিকালি সকলোৱে কেৱল নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে কাম কৰে। বেলেগৰ কথা নিস্বাৰ্থভাৱে চিন্তা কৰা মানুহ আজিকালি নায়েই। মই এইবোৰ কি কৰি আছো? হৃদয়ৰ প্ৰতি ইমান নিৰ্দয় মই কেনেকৈ হ'ব পাৰিছো? স্বাগতাকো ইমান কষ্ট দিছো, মোৰ বেয়া লাগিছে। হৃদয়ৰ যে জীৱনৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে এইবোৰ কৰি আছো, সেয়াও মই তাক বুজাব নোৱাৰো। সিও মোক ঘৃণ কৰা হ'ব। সন্তান বুলি ভবা তেওঁৰটোক মই হেৰুৱাব গৈ আছো। কি হ'ল? মোলৈ এনেকৈ কি চাইছা? যোৱা, নিজৰ কাম কৰা। কৃত্ৰিম খঙৰ মুখা পিন্ধি থাকিলেও কেতিয়াবা সঁচা চকু পানীবোৰে সেই মুখাখন খুলি দিয়ে বৌ। মই অহাৰ আগলৈকে দুগালত চকু পানী লৈ থকা গৰাকীহে আচল বৌ। বৰ্তমানৰ খংবোৰ মিছা। তুমি মোক জাজ কৰিব নালাগে, আৰু এইবোৰ কথা কৈ মোক তেল মাৰিও তোমাৰ একো লাভ নহ'ব। মোৰ তোমাৰ প্ৰতি থকা দৃষ্টিভংগী সলনি নহয়, কেতিয়াও নহয়। মোৰ মানুহজনক আপুনি মনেৰে বেয়া নাপায়, সেইটো মই ভালদৰে জানো, কিন্তু মোক গালি পাৰক, মোৰ ক'ব লগা একো নাই বৌ। মোক গালি পাৰি যদি আপোনাৰ চিন্তা আৰু খংবোৰ কমে, তেনেহ'লে পাৰিব পাৰে। মাথো নিজেই কষ্টত নাথাকিব বৌ। আজি আপুনি বাৰে বাৰে মোৰ চকুত ধৰা পৰি আছে বৌ। স্বাগতা শুনা, আৰু কিছু মানুহ আজিৰ ভিতৰতে ধৰা পৰিব। ল'ৰাটোৱে কলেজটো উলিয়াবলৈ ট্ৰাই কৰি আছে।
আপুনি? অঁ মই। ভয় খাইছে নেকি? ভয় কৰিবলৈ মই অপৰাধী নহয়, আপোনাৰ ভাই হৃদয় গোস্বামী অপৰাধী হয়। মানুহক জেৰা কৰাটোৱে আপোনাৰ কাম নহয় জানো? আজি মই আপোনাক জেৰা কৰিম। কওকচোন, কৃষ্ণৰ লগত আপুনি ইমান কিয় কথা পাতে? ইমান কথা মানে? তেওঁকতো মই এবাৰহে লগ পাইছোঁ, আৰু তেওঁকতো মই ভাল উপদেশ দিবলৈহে লগ ধৰিছিলোঁ। মিছা কথা। আপুনি কৃষ্ণাক 9 বাৰ ফোন কৰিছে। তাইৰ মোবাইলত মই আপোনাৰ নাম্বাৰ পাইছোঁ। অঁ, মনত পৰিছে মোৰ। মই কেছটো সন্দৰ্ভত তেওঁৰ লগত কথা পাতিছিলোঁ। কেছৰ সন্দৰ্ভত আপুনি কথা পাতিব লগা থাকিলে মোৰ লগত কথা পাতক, হৃদয়ৰ লগত কথা পাতক। এগৰাকী মহিলাৰ লগত আপোনাৰ কি কথা? আমাকতো আপুনি ফোন কৰা নাই। আপোনালোক অলপ অবুজন, খংটো বেছি আপোনালোকৰ। আপোনাৰ পত্নীক মই এটা কথাই বুজাইছিলোঁ, যাতে ৰুদ্ৰৰ প্ৰতাপৰ লগত কথা পাতি এই কেছটোৰ পৰা মুক্ত হৈ যাওঁ। এটা কেছত লাগি থাকিবলৈ মোৰো ভাল নালাগে। বৰ হৈ গৈছোঁ, শেষ কৰিব লাগে আৰু। একেখিনি কথাকে কিন্তু মই কৃষ্ণকো সুধিম। যদি কথাৰ ইফাল সিফাল হয় নহয়, এজনী বোৱাৰী ফোন কৰি ডিষ্টাৰ্ব কৰি থকাৰ অভিযোগত মইহে আপোনাৰ ওপৰত কেছটো দিম। মনত ৰাখিব। সিদিনা খঙৰ ভমকতে টান কথা শুনাই দিলোঁ। পাছতহে আপোনালোকৰ মাজত থকা মানসিকতাৰ কথা গম পালোঁ। একো নাই দিয়ক, আপোনাৰ খং উঠাটো স্বাভাৱিক। শিক্ষকতা এটা পবিত্ৰ বৃত্তি। তেনে শিক্ষকৰ পৰিয়াল এটাৰ পৰা আপুনি নিশ্চয় তেনে আশা কৰা নাছিল। আপুনি জড়িত নাছিল বুলি পিছত গম পালোঁ বাৰু। নাই নাই বৌ, দাদাৰ কথা কোনোৱে কোৱা নাই। দেউতাৰ ঘৰৰ কোনোবা সদস্যৰ কথাহে কৈছে, আৰু এই কথাটো ৰুদ্ৰ প্ৰতাপেও স্বীকাৰ কৰিছে। চোৱা স্বাগতা, তুমি যি দুগৰাকীৰ কথা বিশ্বাস কৰিছা নহয়, সেই দুগৰাকী কিন্তু ভাল মানুহ নহয়, আৰু তেওঁলোকে কিন্তু হৃদয়ৰ ক্ষতি কৰিবলৈ যত্নহে কৰিছে। কিন্তু বৌ, তুমি দাদাৰ কথা কিয় তেনেকৈ ভাবিছা? অঁ, মই তেওঁৰ পত্নী, কিন্তু স্বামীৰ ভুল ঢাকি থোৱা পত্নী মই নহয় স্বাগতা। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरे नीट प्रिपरेशन का डे 1 है और ये मेरे चैनल पर मेरा पहला वीडियो भी है। ऑनेस्टली मैं थोड़ी नर्वस थी पर साथ ही एक्साइटेड भी, बिकॉज टुडे आई वांटेड टू स्टार्ट विथ फुल डेडिकेशन। बैकग्राउंड में कुछ पटाखों की आवाज़ आ रही होगी, सॉरी फॉर दैट। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि मैंने आज का टारगेट बुक से भी कंप्लीट किया, मॉड्यूल से भी और लेक्चर से भी। अगर आप भी नीट की जर्नी स्टार्ट कर रहे हो देन आई होप दिस वीडियो मोटिवेट्स यू। आज सुबह मैंने सबसे पहले अपना टारगेट लिखा। मुझे लगता है बिना प्लान के पढ़ना वेस्ट होता है, तो मैंने 3 मेन टास्क डिसाइड किए। बुक से थ्योरी कंप्लीट करनी है, मॉड्यूल के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लेक्चर रिवीजन। आज मेरा एम सिंपल था, जो टारगेट लिखा है वो कंप्लीट करना ही है, चाहे कितनी भी स्पीड स्लो हो। पहले स्टडी सेशन मैंने बुक थ्योरी से स्टार्ट की। स्टार्टिंग के 5 मिनट बस माइंड सेटल करने में ही गए, बट स्लो स्लो रिदम आती गई। मैं इम्पोर्टेंट लाइंस हाईलाइट की और जहाँ कन्फ्यूज़न लगा वहाँ स्टिकी नोट्स लगा दिए। मुझे डे 1 पे ही फील हुआ कि कंसिस्टेंसी रियली मैटर्स। फास्ट पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लियर समझना। फिर मैं 15-20 मिनट पढ़ने के बाद एक स्मॉल ब्रेक ली, वाटर ली, थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह की। ब्रेक लेना ज़रूरी होता है वरना माइंड हैवी हो जाता है। ब्रेक के बाद मैं वापस थ्योरी में आई। इस बार पेस थोड़ा अच्छा हो गया। कुछ टॉपिक्स एक्चुअली इजी लगे, पर कुछ न्यू कॉन्सेप्ट्स पे थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा। मैं डिसाइड की कि डिफ़िकल्ट टॉपिक्स को रात में दोबारा देखूंगी। नेक्स्ट मैंने मॉड्यूल खोला। सबसे पहले वार्म अप के लिए इजी क्वेश्चन सॉल्व किए। इजी क्वेश्चन सॉल्व करने से कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। कुछ डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड थे और कुछ कॉन्सेप्ट बेस्ड। गलत क्वेश्चंस को मैंने रेड मार्क की। उसके बाद मुझे थोड़ा सा ओवरवेल्म फील हुआ, क्योंकि मैं काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद आज स्टार्ट की हूँ। तो ये मेरे आज का सबसे इम्पोर्टेंट सेशन था।
मैं मीडियम और ट्रिकी लेवल वाले क्वेश्चंस पे फोकस की। कुछ क्वेश्चंस जेन्युइनली टफ लगे, पर मैं चुपचाप उन्हें स्किप करने के बजाय कॉन्सेप्ट दोबारा बुक में देख के सॉल्व की। डे 1 पे मुझे ये समझ आ गया, मॉड्यूल ही एक्चुअल टेस्ट होता है। थ्योरी समझ आने का रियल चेक क्वेश्चन से ही होता है, क्योंकि जब हम थ्योरी पढ़ते हैं बुक से या कोई लेक्चर अटेंड करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ सब कुछ रिवाइज होते जा रहा है, सब कुछ याद रहते जा रहा है। लेकिन जब हम उसी थ्योरी पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं। तो हमें किसी भी थ्योरी पे अपना बेस्ट करना है तो उसका सही तरीका है कि उस थ्योरी को करके फिर उस पे बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, ताकि जहाँ पे डाउट लगे वो डाउट वापस से उस थ्योरी से क्लियर करना चाहिए। और अब मेरा लेक्चर सेशन स्टार्ट हुआ। लेक्चर देखते टाइम मैंने पॉजिंग मेथड यूज़ किया। जो भी पॉइंट इम्पोर्टेंट लगा मैं सेम टाइम नोट बनाई। लेक्चर से मुझे कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर हो गए जो बुक में थोड़े कन्फ्यूज़न लगे थे, क्योंकि आप सब जानते हैं एनसीईआरटी तो बहुत ऐसा लाइन होता है जो तो एकदम से समझ में नहीं आता है। बहुत सारे कन्फ्यूज़न्स उस लाइन में क्रिएट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं लेक्चर भी देखी, और फिजिक्स के लिए लेक्चर ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो मैं उस लेक्चर के लिए MR सर का लेक्चर प्रीफर करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फ़िज़िक्स उनसे बेस्ट मैं नहीं समझ पाती किसी और टीचर से। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वही बेस्ट है, लेकिन मैं उनसे बहुत अच्छे से समझ पाती हूँ फ़िज़िक्स, तो मैं उनका लेक्चर प्रीफर करती हूँ। तो डे 1 पे ही लेक्चर प्लस बुक प्लस मॉड्यूल, ये कम्बिनेशन परफेक्ट लगा मुझे। तो मैंने शाम को 10 मिनट का क्विक रिवीजन किया। जितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे उनके सॉल्यूशंस दोबारा देख लिए। वीक टॉपिक्स को सर्कल कर दिया ताकि कल उन पे फिर से फोकस कर सकूं। आज का डे 1 ऑनेस्टली प्रोडक्टिव रहा। मैं जितना टारगेट लिखी थी वो सारा कंप्लीट कर ली। बुक, मॉड्यूल, लेक्चर, कॉन्फिडेंस थोड़ा बिल्ड हो गया। मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो स्टार्टिंग में थोड़ा फोकस सेट करने में टाइम लगा। थोड़ा नहीं, मुझे ज़्यादा ही टाइम लगा, क्योंकि एक लंबे ब्रेक के बाद मैं स्टार्ट की हूँ। तो मुझे स्टार्ट करने में और फोकस करने में थोड़ा टाइम लगा, पर जैसे जैसे चैप्टर्स ओपन किए क्लैरिटी मिलती गई और ख़ुद में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होते गया कि हाँ मुझे थोड़ा थोड़ा तो आइडिया है इस चैप्टर का। ऐसा नहीं है कि मैं नई हूँ और ये सब मेरे लिए नया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसा मुझे फील नहीं हुआ। मुझे लगा कि नहीं, मैं अगर सही से करूँ, अच्छे से करूँ, अपना फुल कंसंट्रेशन दूँ तो मैं कर सकती हूँ। तो मुझे क्लैरिटी मिलती गई। मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अंडरलाइन करती गई। जो टॉपिक डिफ़िकल्ट लगे उनका शॉर्ट नोट्स बनाती गई। तो मुझे ये तो रियलाइज़ हो गया कि कंसिस्टेंसी ज़रूरी होता है, स्पीड नहीं। स्लो रहो लेकिन क्लियर करते जाओ, वो मेरा गोल था। क्योंकि मैं ऐसा नहीं सोची कि हाँ मुझे आज वेक्टर करना है, बेसिक मैथ्स करना है, तो मैं फटाफट उसको मॉड्यूल से या फिर लेक्चर देख के ख़त्म करूं और खुश हो जाऊं कि हाँ मैंने आज का टारगेट सेट किया। मेरा ऐसा था कि मैं जितना ही आज कवर करूं उसको क्लियर करती जाऊं, ताकि मैं बस एक बार अपने शॉर्ट नोट्स पलटूं तो सारा कुछ रिकॉल होते जाए। तो मैं आज का सेशन वैसे ही की। उसके बाद मेरा एक सेशन आया जहाँ मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की मॉड्यूल से। तो उसमें मुझे बहुत मज़ा आया, सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि यहीं पे पता चलता है कि थ्योरी कितनी समझ आई। कुछ क्वेश्चंस इजी थे पर कुछ
कुछ ट्रिकी भी मिले, क्योंकि बहुत सारे ऐसे थ्योरी होते हैं जो बुक से नहीं समझ में आते हैं। उसके लिए लेक्चर अटेंड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जैसा कि आज का मेरा टारगेट फिजिक्स का था, तो फिजिक्स में तो लेक्चर देखना ज़रूरी ही है। और मैं एनसीईआरटी बस इसलिए एक बार थोरोली रिवाइज़ की ताकि कुछ ऐसे पॉइंट्स जो लेक्चर में ना हो या फिर जो मेरे समझ में ना आया हो, तो मैं उसे एनसीईआरटी में देख के एक बार कर सकूं। तो उसके लिए मैं एक बार एनसीईआरटी भी पढ़ी। तो ये रूटीन मुझे डिसिप्लिन बनाने में हेल्प करेगा, मुझे ये पता था। तो मैं अच्छे से अपना आज का पूरा दिन कंटिन्यू करते गई और लास्टली मैं अपने टारगेट को अचीव कर पाई। और मैंने जो टारगेट आज का रखा था वो टारगेट मैं कंप्लीट की। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो लोग मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और अगर वो भी मेरे साथ नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं यही बोलूँगी कि आप मोटिवेटेड रहो और फोकस बना के रखो। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आई थिंक सो। और मैं इसी होप के साथ स्टार्ट की हूँ और इसी मोटिवेशन के साथ मुझे आगे का भी करना है। तो ये तो मेरा डे 1 था नीट की तैयारी का। तो मुझे ऐसा लगता है, ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो स्टार्ट करना ही सबसे डिफ़िकल्ट स्टेप होता है। अगर आप एक बार स्टार्ट करो तो फिर उसमें अपना बेस्ट देने का आपका खुद का भी मन करेगा, क्योंकि ऐसा होता है ना कि अगर आप चाहो कि हाँ मुझे ये करना है, तो फिर आप भी सोचोगे कि यार मैं तो बस टाइम वेस्ट कर रही हूँ, तो अपना क्यों ना इस पे अपना फुल फोकस के साथ मैं ये करूँ ताकि मुझे आगे मेरा कुछ अच्छा रिज़ल्ट आए। और मुझे पता है कि अगर हम अपना बेस्ट देंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। तो अगर आप भी नीट की जर्नी में हो तो बस एक एडवाइस है, छोटा स्टार्ट करो पर डेली स्टार्ट करो। आगे के वीडियोस में मैं अपनी डेली प्रोग्रेस, स्टडी टिप्स और रियल जर्नी शेयर करती रहूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं अपना वीडियो डेली इस पे डालूँ और उसका एक टाइमिंग फ़िक्स करूँ, ताकि मेरे साथ साथ जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी एस्पायरेंट्स ये देख रहे हैं, वो एक टाइम पे उन्हें भी ये टारगेट मिले कि हाँ आज का टारगेट ये है, तो वो भी साथ साथ के कंप्लीट करते जाएं। और मैं अपना टारगेट एक दिन पहले सेट करती हूँ, रात को सोने से पहले, ताकि अगले दिन उठ के मैं बस वो फॉलो करूँ, इस पे टाइम वेस्ट ना करूँ कि मुझे आज क्या पढ़ना है। तो मैं वो टारगेट जब सेट करूँगी तो ही मैं अपने चैनल पे पोस्ट कर दिया करूँगी। तो आप सब जो भी देख रहे हो तो आप भी उसी के साथ साथ वही टारगेट करके कर सकते हो, या फिर आप अपना भी टारगेट सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। आपको जो इजी लगे या जो ज़्यादा कंफर्टेबल लगे, आप उस अकॉर्डिंग अपना टारगेट सेट कर सकते हो। बट जो मेरे साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं तो मैं उनके लिए अपना टारगेट डेली पोस्ट कर दिया करूँगी, ताकि आपको भी एक आइडिया मिलते रहे और आप भी एक गोल सेट करके काम करते रहो। तो मुझे पता है कि मेरे वीडियो में ना सही से एडिटिंग है ना ही वॉइस ओवर है, इसलिए मैं वॉइस को म्यूट कर दी और वॉइस ओवर ही करना प्रेफर की, ताकि मैं जो पूरे दिन मैं जिस माइंडसेट के साथ अपना तैयारी शुरू की और मैं जिस माइंडसेट के साथ पढ़ी हूँ वो आप सबके साथ सही से अच्छे से शेयर कर पाऊँ। तो आप वीडियो के एडिटिंग पे ना जाएं, क्योंकि मैं अभी नई ज्वाइन की हूँ चैनल पे, तो मैं धीरे धीरे ये भी सीख रही हूँ और
इस पर भी ध्यान दूंगी कि मेरे वीडियो आप सबको पसंद आए और आप लोग इसे देख के थोड़े मोटिवेट हो और पसंद आए आप लोगों को। ऐसा ना हो कि आप बस वॉइस ओवर के लिए सुनो या ऐसे ही बस। तो मैं वीडियो पे भी ध्यान दूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई होप कल फिर से मैं अपने टारगेट को पूरा कर सकूं और अपना वीडियो फिर से इसी डिटेल के साथ डाल सकूं। जैसा कि मैं बताई कि मैं लेक्चर भी देखी, तो लेक्चर देखते हुए मैं पॉज रिवाइंड मेथड यूज़ की, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखी और जहाँ भी कॉन्सेप्ट डीप था वहीं पे 1-2 मिनट रुककर समझा, ताकि मुझे आगे उस पर कन्फ्यूज़न ना लगे और मैं एक ही टॉपिक पे अटकी ना रहूं। तो मैं उस कॉन्सेप्ट को दोबारा देखी, जो 2 बार में नहीं समझ में आया मैं उसे फिर से देखी, ताकि मैं आज का आज ही ख़त्म करके जाऊं, मुझे फिर से इस पे कोई डाउट ना मिले और किसी कॉन्सेप्ट में मुझे कन्फ्यूज़न ना लगे। बस इतना रह जाए कि मैं जब अपने शॉर्ट नोट्स पलटूं तो मुझे सारा कुछ अच्छे से याद होते जाए। तो मुझे लेक्चर इसलिए भी पसंद है क्योंकि किसी टॉपिक को किसी और के वर्ड्स में सुनना ब्रेन को और क्लैरिटी देता है। जैसे कि अगर हम आज बायोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ते हैं और अगर उसी चैप्टर को मैं किसी और को समझाऊं तो वो चीज़ मुझे अच्छे से याद हो जाती है और मैं कभी उसे भूल नहीं सकती। तो मेरा ये स्ट्रेटजी है थोड़ा याद करने का और पढ़ने का। मैं अपने पिछले जर्नी में भी ऐसे ही अपना प्रिपरेशन की, बायोलॉजी को मैंने ऐसे ही याद करा, उसके जो जो एग्ज़ाम्पल्स वगैरह होते थे तो उसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक अपनाया, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स जो बस याद करने ही हैं तो मैं उसको खुद से एक बार याद करके दूसरे को समझाती थी, उसे सुनाती थी। जो नहीं सुनना चाहते थे उन्हें भी पकड़ पकड़ के मैं ज़बरदस्ती सुनाती थी, ताकि मुझे वो याद रह सके, लंबे समय तक मैं उसे याद रख सकूं और भूलूँ ना। तो मैं इस तरीके से बायोलॉजी को पढ़ती हूँ। लेकिन आज मैंने अपना टारगेट फ़िज़िक्स का रखा और कल मैं ये सोची कि कल मैं बायोलॉजी का टारगेट रख रही हूँ, तो कल मैं बायोलॉजी कंप्लीट करूँगी जो भी चैप्टर्स हैं। तो उसके लिए तो बायोलॉजी के लिए मैं NCERT पढ़ूँगी और फिर मॉड्यूल के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। और NCERT में जो एग्जाम्पलर रहते हैं, जो इंडेक्स बना रहता है, और मुझे तो ऐसा लगता है कि पिछले साल के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अब जो बॉक्स में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या स्टार मार्क करके जो लाइन आते हैं उन्हें भी याद करना और समझना बहुत ज़रूरी हो गया है। और हर एक साइंटिस्ट का नाम याद करना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। तो मैं बायोलॉजी में वही सब अपने माइंड में रख के उसके अकॉर्डिंग करूँगी, ताकि कुछ ऐसा ना रहे पिछली बार की तरह कि अरे मैं इसे पढ़ लेती तो सही रहता। तो मैं वो बॉक्स के भी सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी और चैप्टर के लास्ट में जो समरी दिया रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन सेट होते हैं, तो वो भी अच्छे से पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं उसे भी प्रीफर करूँगी। और फिर NCERT अच्छे से करने के बाद मैं PW के पावर बैच से क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, क्योंकि वहाँ पे आकांक्षा मैम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाई हैं क्वेश्चंस के, और मुझे नहीं लगता कि उस क्वेश्चंस को करने के बाद कहीं और से कोई क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी पड़ेगी, क्योंकि मैम ने सारे टॉपिक्स को कवर करके और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेट किए हैं उसमें। तो मैं उस क्वेश्चंस को अच्छे से एक OMR शीट पर
सॉल्व करूँगी और साथ बाद में ये चेक भी करूँगी कि उसमें मैं कितने सही कर पाई और कितने गलत। और जो क्वेश्चंस मेरे गलत होंगे मैं उसको वापस से एनसीईआरटी से ही सॉल्व करूँगी, क्योंकि बायोलॉजी में एनसीईआरटी ही मस्ट है। मैं कहीं और से उस चीज़ को नहीं कर सकती हूँ क्लियर। और अगर इस दोनों जगह से मेरा सारा डाउट कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाएगा, उसके बाद अगर टाइम बचा तो मैं एक बार ट्रूमैन से पूरा रीडिंग करूँगी, ताकि जो भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो, कभी कभी ऐसा होता है एग्ज़ाम में कि कुछ पॉइंट्स अलग से आते हैं, तो मैं एक बार बस ट्रूमैन की रीडिंग दूंगी उन चैप्टर्स के, ताकि कुछ वैसा अलग पॉइंट हो तो मुझे वो दिमाग में रहे और हेल्प हो सके। तो उसे मैं उतना याद नहीं करूँगी, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगी कि मेरे दिमाग में वो सेट रहे, ताकि एग्ज़ाम में अगर कुछ एनसीईआरटी से अलग आया तो मैं उसके हेल्प से वो कर सकूँ। तो आई होप आप सबको मेरा ये स्ट्रेटजी, मेरा ये प्लान, मेरा ये टारगेट पसंद आया हो, और आप लोग भी मेरे साथ साथ ही नीट की तैयारी शुरू करो, और वैसे ही जोश के साथ करो जैसे मैं की। और मैं ये चाहती हूँ कि आप सब भी नीट में अच्छे रैंक ला पाओ और अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाए। तो आई विल ट्राई कि रोज़ अपना ऑनेस्ट स्टडी व्लॉग शेयर करूँ, जिसमें प्रोग्रेस भी हो, स्ट्रगल भी और रियल जर्नी भी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं डे 2 में। बाय एंड कीप